मैं सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ जिससे कि later on if you want to watch this again you can do that. Okay, so let me introduce myself. So my name is Rajesh Upadhyay. So I have around 18 years of experience, especially in test automation. Okay, so I am working in one of the MNC in Pune as a vice president. Okay, and in weekends this is my passion to train the peoples also, and I am this profession since last 12 or 13 years. Okay, so earlier I started my career from Delhi TCS. Okay, so I was there in Delhi. I joined, worked in multiple companies over there, and I was there around 5 years. So I had a one center at that moment in Noida. Then I moved to the Chandigarh FIS. Then there also I worked 5 years almost. So then I had another center in Chandigarh. Then 2016 I moved to Pune. It was Then I opened my center here in same building, but another wing, second floor. Okay. And then 2020, what's happened? तो उसके बाद से सारी classes online हो गई. And last 2 months, I think 14th of May onwards, we started this center again, resume this center offline. Okay. तो तब से क्योंकि ऑफलाइन अब डिमांड बढ़ने लगी, तो आई थॉट कि ऑफिस है तो यूटिलाइज करूं. So I think that's all about me. Okay, so let me talk about what exactly you want to learn here, right? What are the courses we will provide you? What are the features and facilities you will get here? Okay, so that's the thing. Okay, before starting, just I want to know like कहाँ से आपको reference मिला automation test hub का? Google. I got it from Just Add. Just nice. And I myself also not like it's the nearby coaching center. I searched and I got question. Okay. One of my relative attended your class. So What's the name? Kishore Ravindra Yadis in 2008, 18 or 19. Okay, Ravindra. Okay. तो हमारे इंस्टीट्यूट का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, इवन तब भी वो गूगल पे पहले पे ही आता है. ठीक है, क्योंकि उसके रिव्यूज शायद बहुत अच्छे हैं, लोग प्रेफर ज्यादा करते हैं, राइट. और दूसरी चीज ये है कि स्पेशली जैसे आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाओगे, राइट, तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, और जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन से है. तो इफ यू वांट टू लर्न ऑटोमेशन, वी हैव ऑलमोस्ट 24 कोर्सेज. तो जितने भी टूल मार्केट में चल रहे हैं एटलीस्ट, वो सारे के सारे ट्रेनिंग्स, क्योंकि हमने सब पे काम कर रखा है. तो आई वर्कड ऑन मे बी मोर देन 12 to 14 automation solutions, right? And 5 to 7 programming languages. So I can work in Python, JavaScript, Java, C Sharp, right? Kotlin, Ruby, Perl, any other programming language, because since career is so long, right? So I got many opportunities to work on different companies, different tools, different technologies. So I keep on learning still, right? So now I have moved to the AI and machine learning this moment. So probably after 6 or 7 months, I will start that course also there. Once I will be completed everything, almost couple of projects. Once I will have confidence, and probably start that as. Will you include the manual testing also in that? Yes. So होगा कैसे? ऑटोमेशन की बैच सेपरेट चलती है और मैनुअल की बैच सेपरेट होती है, राइट. तो अगर आपको मैनुअल करना है तो राइट, सो बता रहा हूँ, जिसको मैनुअल करना है मतलब उसको सारे ही करना है, राइट. तो उसके बारे में बताता हूँ मैं आगे. तो उसके लिए आपको दूसरी बैच, मतलब वो वीकडेज में होती है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास टाइम है तो वो वीकडेज में अटेंड करते हैं. जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको वीकेंड पे चाहिए होता है, क्योंकि 5 days तो उनका वैसे ही चलता रहता है, राइट. तो एनीवे, तो मेरे पास जो पॉपुलर कोर्सेज है, लेट मी टेल यू.
डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये कोर्स है जो बहुत ही फेमस है। दूसरा है एस्टेट एंड तीसरा है सबसे पॉपुलर जो इस टाइम पे है फुल स्टैक। तीनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा समझो। तो इसके बारे में अगर हम पूरा डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा हम उसको प्रेफर करते हैं जो जिसको करियर स्टार्ट करना है, राइट। मतलब इसमें आपके पास कोर्सेज में क्या क्या चीजें होंगी, पूरा का पूरा मैनुअल टेस्टिंग। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या आप लोगों ने जब करियर स्टार्ट किया होगा टेस्टिंग मोस्टली, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब होता है मैनुअल टेस्टिंग। एग्जैक्टली अगर आपने कहीं से भी ट्रेनिंग अटेंड किया होगा तो लेट्स से अगर आपने 6 मंथ का कोर्स किया होगा तो 4 से 5 महीने आपको उन्होंने मैनुअल टेस्टिंग पढ़ाया होगा और सडनली ऑटोमेशन का ओवरव्यू देके छोड़ दिया होगा कि दिस इज द रिकॉर्ड एंड प्ले करके समथिंग दिखाया होगा कि ये ऑटोमेशन होता है। उसके बाद दैट्स इट, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग को भी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली बढ़ाते हैं। तो जैसे अगर आप एज्यूम करो तो मैनुअल टेस्टिंग के टाइप्स ऑफ थियरी जस्ट 70% ऑलमोस्ट थियरी और जस्ट अगर ठंड लग रही है डायरेक्ट इसको स्विंग मोड पे डाल दो, ठीक है। ओके, तो जैसे टेस्ट केसेस लिखना कैसे होता है, जीरा में कैसे काम करना होता है, ऑलमोस्ट यही सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन बस इतना सा प्रैक्टिकल होता है। बट हम यहाँ पे हर एक चीज को प्रैक्टिकली करते हैं, इवन मैनुअल टेस्टिंग में भी। तो जैसे कि हम पूरा का पूरा बैच में, जैसे कंपनी में काम होता है कि अगर आप मैनुअल टेस्टर हो तो आपको कैसे काम मिलेगा, कि आप कैसे आपको प्रोजेक्ट की किटी लेनी चाहिए पहले, राइट। किटी लेके अंडरस्टैंड कैसे करना है, तो रिक्वायरमेंट को कैसे समझना है। तो हम बंदों को ऐसे ट्रेंड करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे फेज में क्वालिटी इंट्रोड्यूस। ये नहीं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग अगर एक फेज है तो सिर्फ उसी फेज में टेस्टर को काम करना है, नहीं। अब वो ट्रेंड्स खत्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हर एक फेज में क्वालिटी इंजेक्ट करना है। दैट्स मीनिंग ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी इंजीनियरिंग, राइट। तो रिक्वायरमेंट में भी हमें है जाना है, डिजाइन में भी जाना है, राइट। हर एक लेवल पे कोडिंग में भी जाना है और टेस्टिंग में तो हम रहते ही हैं। इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, हर जगह हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एजाइल, क्योंकि हम एजाइल मोड में आज के डेट में काम कर रहे हैं। तो हर जगह हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारे ओपिनियंस को भी लोगों को समझना चाहिए, राइट, कि हमारे क्वेश्चंस क्या है, हमारा सजेशंस क्या है, ओके। तो उस वे में हम करते हैं जिससे कि रिक्वायरमेंट बनाओ कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो वो काम आपका नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना नहीं जानते हो तो उसको समझोगे कैसे, उसके इंपॉर्टेंस को कैसे समझोगे, कभी उस पर क्वेरी करना हुआ तो कैसे करोगे, राइट। तो एवरीथिंग, टेस्ट प्लान कैसे बनाना है, टेस्ट स्ट्रेटजी कैसे बनाना है। कभी कभी ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लान, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, टेस्ट स्टडी डॉक्यूमेंट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट बनाए। कोई उसको टेस्ट स्ट्रेटजी बोलेगा, कोई उसको टेस्ट प्लान बोलेगा, राइट। तो अलग अलग चीजें, बट दोनों अलग है। टेस्टेबिलिटी कैसे डिजाइन करेंगे, हर एक टेस्ट केस को टेस्ट केस लिखेंगे कैसे, राइट। टेस्ट केस को मैप कैसे करेंगे, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, डिफेक्ट रेज कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे। मान लो डेवलपर तुम्हारे डिफेक्ट को बताते हो कि आप रेज किए डिफेक्ट है, डेवलपर बोलता है नहीं है, तो आप क्या करोगे, मान लोगे कि नहीं मानोगे, किससे कॉन्टेक्ट करोगे, राइट। तो कई सारी चीजें होती हैं जिसको प्रैक्टिकली आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है इंडस्ट्री में, अगर आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है तो यू कांट सर्वाइव देयर। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप भले ही कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हो, राइट, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप इजिली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, वहां जाके इजिली काम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है, कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा, आप कभी इंटरव्यू फेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस है कि पूछोगे क्या, पूछ लो। आई वाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, ओके। तो मैनुअल टेस्टिंग यहाँ पे होगा हमारा। दूसरा होगा ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत वास्ट एरिया है, जैसे मैंने बताया 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं। तो इसमें कौन सा टूल हम यूज करते हैं, तो जैसे इंडस्ट्री आपको पता ही है, सब लोग जो वर्किंग है, तो सिलेनियम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऑल्दो बहुत सारे टूल हैं इंडस्ट्री में रियल टाइम पे यूज भी हो रहे हैं, जैसे साइप्रेस हो गया आपका, प्ले राइट भी यूज कर रहे हैं लोग, यूएफटी का नाम सुना होगा, राइट। तो ये सब कम्पिटिटर, टोस्का सुना होगा। तो ये सारे टूल भी कम्पिटिटर है, बट सेलेनियम जो है वो ओपन सोर्स है, फ्री है और सबसे ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है। इसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है,
इसमें अगर बंदे कोई रिजाइन भी डालता है तो दूसरा बंदा भी इजिली मिल जाता है मार्केट से, तो इसलिए कंपनियां इसी को प्रिफर करती हैं, राइट। तो इसमें हम करेंगे सेलेनियम। अब बात आती है लैंग्वेज की। सेलेनियम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो लाइक जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी शार्प हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, रूबी हो गई। तो इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो हमें सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सफिशिएंट है। और जो मार्केट में सबसे ज्यादा कम्युनिटी है सेलेनियम की, वो किसके साथ है? जावा के साथ। सेकंड है पाइथन। पाइथन भी आ रहा है मार्केट में, लेकिन अभी भी जावा ही है। ओके, तो ये सेलेनियम विद जावा के साथ हम पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा का पूरा ऑटोमेशन करेंगे। और ऑटोमेशन करने का मतलब ये हो गया कि ये थियोरेटिकली कुछ नहीं होगा, हमारे पास पीपीटी नहीं चलने वाली, प्रैक्टिकली एक एक चीजें। जैसे मान लो कि अगर आपने मैनुअल टेस्टिंग किया, सपोज करो आपने 1000 टेस्ट केसेस डिजाइन किए, तो वो 1000 में ऑटोमेट करा दूंगा ये, तो वो आपका रियल एक्सपीरियंस बन जाएगा। जैसे कि मान लो आपको ये 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर आपने 100 टेस्ट केस अपने आप से ऑटोमेट कर दिया, तो वो आपका रियल एक्सपीरियंस बन गया, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, राइट। आपको आइडिया होगा कि कैसे फ्रेमवर्क बनाना है, कैसे काम करना है, तो इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा, किसी कंपनी में जाके इजिली काम भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सेलेनियम विद जावा, ये सारी चीजें कवर होगी, और ये अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, जैसे जे यूनिट हो गया, टेस्ट एनजी हो गया, अगर कुछ सुना हो आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हो गया हाइब्रिड फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं, टेस्ट डेटा ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन, तो हाइब्रिड हम बनाते हैं जिसमें सब अप्रोच आ जाए, ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते हैं, डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं, पेज फैक्ट्री यूज करते हैं, राइट, इसके अंदर। उसके बाद आपका मैवेन हम पढ़ेंगे, फिर मैवेन के बाद आपका एक्सटेंट रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, कि एक्सटेंट रिपोर्ट एक्सटर्नल कैसे जनरेट करेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे आपका क्यूकम्बर। नाम सुना होगा, आज के डेट में सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है, राइट। बीडीडी स्लैश टीडीडी अप्रोच, जो एजाइल में कैसे ऑटोमेशन को हम कर सकते हैं। इसके बाद हम डेवऑप्स के पार्ट पढ़ेंगे, जैसे गिट पढ़ेंगे, फिर जेनकिंस पढ़ेंगे, कैसे पाइपलाइन में हमारी स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट होंगी, जैसे बिल्ड डिप्लॉयमेंट होता है, जैसे डेवलपर कोई भी कोड चेक इन करता है गिट में, ऑटोमेटिकली हमारे ऑटोमेशन सोल्यूशन ट्रिगर हो जाना चाहिए, टेस्टिंग होकर रिपोर्ट्स मेल पे आ जानी चाहिए। ये नहीं कि हमें बैठ के एग्जीक्यूट करना है, कुछ नहीं, वन क्लिक सब चीज़ें होना चाहिए, नो मैनुअल इंटरवेंशंस, ठीक है। तो उस एक्सटेंट तक डेवऑप्स में हम सारा कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे सारे सॉल्यूशंस हमारे ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस कैसे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, चाहे डिफेक्ट टेस्टिंग हो, चाहे स्मोक हो, सैनिटी हो, रिग्रेशन हो, हर जगह कैसे सुटेबल होगा, राइट। तो वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं ऑटोमेशन में। इसके बाद थर्ड चीजें हमारे पास होती हैं एपीआई। आज के डेट में आपको पता ही है कि बिना एपीआई के कुछ नहीं हो सकता। हर एक जो भी एप्लीकेशन डिजाइन हो रही है आज के डेट में, उसके बैकग्राउंड में क्या है? एपीआई। तो एपीआई बहुत डिमांडिंग है। अगर यूआई ऑटोमेशन के बाद अगर कुछ भी है तो वो है एपीआई। और बिना एपीआई के आज के डेट में रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं। फिर से, अगर आपके पास मैनुअल ऑटोमेशन भी है, एपीआई नहीं पता, तो फिर भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो एपीआई जानना बहुत जरूरी है। तो एपीआई की हमें क्या करनी पड़ेगी? मैनुअल टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एपीआई की अगर मैनुअल टेस्टिंग आपको नहीं पता तो ऑटोमेशन कैसे करोगे? तो इसकी मैनुअल टेस्टिंग हम कैसे करेंगे? पोस्टमैन यूज करेंगे, राइट। और अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो फिर इसकी हम ऑटोमेशन करेंगे रेस्ट एश्योर्ड यूज करते हैं, जो कि जावा की लाइब्रेरी है। क्योंकि जावा आपको ऊपर पहले से पढ़ चुके होंगे, तो जावा का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये जावा, टेस्ट एनजी, ये सब यूज करके यही फ्रेमवर्क जो कुकुम्बर का होगा या हाइब्रिड फ्रेमवर्क होगा, इसी फ्रेमवर्क में हम एपीआई भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक ही फ्रेमवर्क में हमारे पास यूआई ऑटोमेशन और एपीआई ऑटोमेशन दोनों के सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। नाउ थर्ड थिंग, मोबाइल ऑटोमेशन। अब जैसे आपको पता ही है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आज के डेट में वेब एप्लीकेशंस बन रही हैं, वो सारी की सारी मोबाइल पे भी जा रही हैं। जैसे आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट, फेसबुक, आप लिटरली सोचो कितने सालों से आपने लैपटॉप पे फेसबुक नहीं ओपन किया होगा, या अमेजोन, या फिर आप फ्लिपकार्ट, राइट, ये सब चीज़ें कभी ओपन किया? नहीं ओपन किया लैपटॉप पे, हमेशा आप मोबाइल पे करते हो। तो इंडस्ट्री कहाँ मूव हो रही है? बिजनेस पूरा का पूरा, क्योंकि मोबाइल सबके पास 24 घंटे है, कोई भी चीज़ चाहिए वो तुरंत कर सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो बिजनेस हो रहा है आज के डेट में, वो किससे हो रहा है? मोबाइल से, मोबाइल प्लेटफॉर्म से। तो इसलिए वेब से ज्यादा लोग फोकस किस पे कर रहे हैं आज के डेट में? मोबाइल एप्लीकेशंस पे।
तो मोबाइल के टेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, मैनुअल टेस्टर्स नहीं है, तो ऑटोमेशन तो छोड़ दो अभी, राइट, जिसको नॉलेज हो। हालांकि काम करने का तरीका सिंपल है, जैसे मैनुअली आप वेब पे करते हो वैसे मोबाइल पे करोगे, लेकिन स्टिल यू नीड मोर नॉलेज। कितने टाइप की एप्स होती हैं, हाइब्रिड एप्स क्या है, नेटिव एप्स क्या है, ये एप्स काम कैसे करते हैं, राइट। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज क्या सोच सकते हो, तो वो अलग लेवल थोड़ा सा होता है सोचने का। काम तो वही रहेगा, लेकिन सोचने का तरीका थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है इंडस्ट्री में मोबाइल के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे मोबाइल टेस्टिंग भी कवर करते हैं, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन में इसको हम यूज करेंगे एपीएम, ये भी बहुत पॉपुलर टूल है। ये भी, ये जो एपीएम है ये सेलेनियम के लाइब्रेरी पे ही के टॉप बना हुआ है, तो बैकग्राउंड पे ये सेलेनियम की ही लाइब्रेरी यूज करता है। तो जिसको सेलेनियम का कंसेप्ट क्लियर रहता है वो इजिली मोबाइल ऑटोमेशन भी कर सकता है। कंसेप्ट सिमिलर रहेंगे ऑलमोस्ट 80%, सिर्फ 20% डिफरेंस है कि लोकेटर कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक्सपाथ इसका कैसे निकालना है, ये सारी चीजें। ओके, क्योंकि इसमें ब्राउजर तो लॉन्च होगा नहीं, तो इसलिए डिफरेंट होता है। अब इतनी सारी चीजें अगर आपको आती है और अगर आपको अच्छे से डेटाबेस नहीं आता तब भी बेकार है। क्योंकि आज के इंटरव्यू चाहे मैनुअल का दो चाहे ऑटोमेशन का दो, आपसे क्वेरी वगैरह तो लिखवाएंगे कि ज्वाइंस तो पूछेंगे ये कम से कम, राइट। क्योंकि ऑटोमेशन करते समय या मैनुअल टेस्टिंग करते समय भी हमें कभी कभी अप्रोच के बारे में सोचना पड़ता है कि शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या है। ऐसा नहीं है कि यूआई उठाया और यूआई को ही ऑटोमेट कर दिया। अब यूआई ऑटोमेट करोगे अगर मैक्सिमम एक्सटेंट तक, तो होता क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, राइट। अगर मान लो आपने 1000 टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर दिए तो उसको एग्जीक्यूट होने में भी तो टाइम लगेगा। अब एग्जीक्यूट होने में अगर 2 दिन लग रहा है तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना आपका ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन मतलब होता है क्विक, क्विक चीजें, सारी चीजें इमीडिएटली हो, राइट। तो सोल्यूशन हमारा जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा है, बट कवरेज पूरा होना चाहिए। तो आज के डेट में सिर्फ ऑटोमेशन आना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, इसकी स्ट्रेटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है कि किसी एप्लीकेशन को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि कम से कम टाइम में हम उसको ऑटोमेट कर पाए और कम से कम टाइम पे उसको एग्जीक्यूट भी कर पाए, राइट। क्योंकि जितना यूआई बनाओगे उतना स्लोनेस फेस करोगे आप, उतने ज्यादा इश्यूज होंगे। जैसे आप लोग अगर वर्किंग हो तो आपको पता ही होगा कि अगर आपके कंपनी में ऑटोमेशन है वो कभी चलता है। अगर वो प्रॉपर चलता होता तो आपका काम होता वहां पे, आपका वर्कलोड कभी कम हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेशन क्या हो रहा है फिर, मतलब वो अप टू द मार्क नहीं है जो होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% इंडस्ट्रीज में यही है, अभी भी ऑटोमेशन लोग कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस लेवल पे उनको ऑटोमेशन करना चाहिए वो अप्रोच सही नहीं डिसाइड कर रहे हैं। कि ये चीज तो मैंने अपने करियर में सीखा कि कैसे कैसे चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट। तो वहां पे कभी कभी हमें क्या चाहिए कि जो बहुत सारी चीजें होती है उसको हम बैकएंड से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कि अपने एक फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करो आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है सक्सेसफुली। तो डेफिनेटली आपने क्या किया, साइन अप किया, लॉग इन किया और जाके एक प्रोडक्ट सर्च करके ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आपको ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो अब हर एक टेस्ट केस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अब जिस दूसरे ऑर्डर को जिसको कैंसिलेशन आपको चेक करना है तो उसको पहले फिर से आप क्रिएट करोगे और फिर जाके कैंसिल करोगे, समझे। या फिर उसकी हिस्ट्री वेरीफाई करना है या रिफंड लेना है, कुछ भी। तो हमेशा एक ही ऑर्डर को आप नहीं कर सकते, आप बार बार डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के साथ खेलोगे। तो हम क्या कर सकते हैं किसको, वो प्रोसेस पूरा का पूरा हम बैकएंड से कर सकते हैं। कि मान लो कि एक बार हमने यूआई चेक कर लिया कि ऑर्डर क्रिएशन काम कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हैं, तो बार बार वही चीज हम यूआई से नहीं करेंगे। अगर हमें टेबल्स की इन्फॉर्मेशन पता है तो कहाँ कहाँ पे टेबल्स में, डेटाबेस में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है, हम एक इंसर्ट क्वेरी बनाएंगे, टेस्ट डेटा सेटअप कर देंगे पहले से ही। फिर जाके स्टेटस उसका बैकएंड में चेंज करेंगे, यूआई पे वेरीफाई करेंगे। तो ये शॉर्टेस्ट वे हो गया कि मतलब ऑर्डर कैंसिलेशन हमें वेरीफाई करना है तो हार्डली विद इन 1 मिनट हम कर सकते हैं, हमें पूरा प्रोसेस फिर से करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखो कि बहुत सारे हजारों मेन्यूज होती हैं, मेन्यूज के अंदर सब मेन्यूज। अब सारे मेन्यूज तो आपको याद ही नहीं होंगे कि कौन से होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए, कितना टाइम लगेगा टेस्ट करने में। तो ऐसी चीजों को हम सीधे सीधे बैकएंड में जाके टेबल से ही पूरा वेरीफाई कर लेंगे कि क्या क्या आना चाहिए। तो क्विकली विद इन सेकंड्स हम ये चीजें कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यूआई पे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए डेटाबेस भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे इस इफेक्टिवली आपको यूज करना है इन टेस्टिंग, चाहे ये मैनुअल हो चाहे ये ऑटोमेशन हो। क्लियर। तो अगर आपको डेटाबेस की नॉलेज है तो अच्छी अच्छी बात है। साथ में आज के डेट में और क्या मांगते हैं, लिनक्स के बेसिक कमांड्स इंटरव्यू में पूछता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे।
तो लिनक्स के मुश्किल से हार्डली 50 कमांड है, पढ़ लिया सबसे, और वही कमांड सीधे आपका मैक वगैरह में भी काम आ जाएगा। अगर क्लाउड वगैरह पे भी काम कर रहे हो, AWS पे भी काम कर रहे हो, मशीन सेटअप कर रहे हो, वहाँ पे भी वो सब यूज में आ जाएंगे, कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हो गया ये सारी चीज़ें। और 6 इसमें हमने ऐड किया है JMeter, क्योंकि अगर सारी टेस्टिंग हमने कर ही लिया फ्रंट एंड से बैक एंड तक, तो फिर परफॉर्मेंस क्यों छोड़े। अब परफॉर्मेंस भी अगर हमें जावा पहले से पता है तो एक्सट्रीम लेवल तक हम JMeter यूज कर सकते हैं, क्योंकि JMeter भी जावा के साथ चलता है, तो इजिली हम इसको भी रन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा सिलेबस, ये पूरा का पूरा किस में आएगा, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्लियर। अब इसी को कॉपी करो और सीधे सीधे यहाँ पे पेस्ट कर दो SDET, इसमें हटा दो मैनुअल टेस्टिंग और JMeter हटा दो, ये हमारा हो गया SDET, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग। तो इसमें फोकस सबसे ज्यादा किस पे होता है, कोडिंग पे, तो अप्रोच थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें मैक्सिमम हम आपसे मान के चलेंगे, टेस्टिंग का कंसेप्ट पहले से क्लियर है, तो आपसे कोड ज्यादा से ज्यादा लिखवाया जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड वन है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस टाइम पे, वो हमारा है फुल स्टैक, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड है। पहले क्या होता था, कंपनीज में फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते थे, बैक एंड डेवलपर अलग होते थे, ऐसे फिर उसके हिसाब से फ्रंट एंड टेस्टर भी होते थे, बैक एंड टेस्टर्स भी होते थे। अब क्या है, कंपनीज फुल स्टैक डेवलपर्स हायर कर रही है। जब फुल स्टैक डेवलपर आएगा तो फुल स्टैक टेस्टर भी तो उसके साथ काम करेगा ना। तो अगर वो फ्रंट एंड से बैक एंड सारी चीजें डिजाइन कर रहा है तो टेस्टिंग कौन करेगा उसकी, तो उसके लिए भी फुल स्टैक चाहिए। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा जो हॉट ओपनिंग्स निकल रही हैं वो फुल स्टैक की है, और इसमें इतना पैसा है कि मैं बता नहीं सकता। रिसेंटली अभी 7 इयर्स के एक्सपीरियंस के बंदों को हमने हायर किया अपनी कंपनी में, 40 लाख का ऑफर दिया, मतलब इतना उसके पास पहले से ही 36 का था। तो मतलब लोगों को मिल रहे हैं पैसे इतने, क्योंकि नॉलेज है अगर आपको तो इसलिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया। तो मुझे आइडिया लगा कि ये तो बहुत डिमांडिंग कोर्स है, तो अच्छा है ना कि अगर लोगों को चाहिए तो हम दे सकें। तो ये हमारा फुल स्टैक है। तो आज के डेट में हमारे पास वीकेंड में लगभग 4 बैचेज हैं, क्योंकि पूरा फुली ऑक्यूपाइड है। 11 बजे से बैच स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो आपका डेमो था, जबरदस्ती रखना था, इसलिए सुबह मॉर्निंग में करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले टाइम नहीं है मेरे पास। उसके बाद तो चारों के चारों फुल स्टैक, और वीकडेज में भी एक है वो भी फुल स्टैक। अब इसका रीजन बात करते हैं कि क्यों बेनिफिट है। अब जैसे कुछ लोग के दिमाग में कि नहीं अपने को तो ऑटोमेशन सीखना है, राइट, फुल स्टैक सीख के क्या करेंगे। आपको बेनिफिट इसका ये मिल रहा है क्योंकि हमने प्लान ये किया था कि अब स्टार्टिंग के 6 बैचेज जो होंगे उसमें ऑफर्स, अभी स्टार्ट हुआ वापस से, तो ऑफर ही ऑफर है, ठीक है। तो अगर आप जस्ट इमेजिन करो, संपदा वो वाली लिस्ट है तुम्हारे पास, मुझे चैट पे दोगी सारे इंस्टीट्यूट की फीस वगैरह। ओके, तो अगर आप मैनुअल टेस्टिंग करने जाओ किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो कम से कम 25,000 रुपीज आपका वो फीस होगा, जाके इंक्वायरी कर लो कहीं पे भी, राइट। और मैनुअल टेस्टिंग हम यहाँ पे आपको 10K में सिखाते हैं। तो हमें मतलब फीस जो है वो सबसे कम ही मार्केट में है, क्योंकि हमने सारे इंस्टीट्यूट से बात किया, राइट। उसके बाद मिनिमम मतलब हम उतना ही फीस रखते हैं जितने में हमारा काम चल जाए, सिंपल है, ओके, और कुछ नहीं है। दूसरा, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी अगर आप करने जाते हैं तो ऑटोमेशन सिलेनियम का कोर्स आपको पुणे में 5,000 से लेके 1,50,000 तक है, या 1,75,000 तक है, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट वो ले रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट है जिसमें 1,75,000 फीस है, पता नहीं वो क्या पढ़ाएंगे, लेकिन जा रहे हैं बंदे उनके पास भी, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5,000 में भी पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको सोचना है, बट जो एवरेज है कि आपको डिपेंड ये करता है, एक होता है सिलेबस जनरली। देखो एक इंटेंशन क्या होता है कि जनरली हम कंपेयर कैसे करते हैं इंस्टीट्यूट्स को, कि एक होता है सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या कवर कर रहे हैं, दूसरी चीज होती है फीस क्या है। यही चीज हम जनरली फोकस करते हैं कि कंटेंट और फीस, राइट। अब कंटेंट मान लो ये सारी चीजें
लिखी हुई है, जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन इसमें ये पढ़ाएंगे कैसे? इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। अगर मैं आपको बताऊं कि टेस्ट एनजी क्या है, तो टेस्ट एनजी हो सकता है कि पढ़ने में आपको 1 हफ्ते लगे, इतना वास्ट है ये। और ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट एनडी में सिर्फ एनोटेशंस के बारे में बता के आपको छोड़ दिया जाए कि ये ऐसे होता है, तो हो सकता है कि आपको 1 घंटे में टेस्ट एनजी खत्म हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है किसी चीज का, राइट। तो स्पेशली यहाँ पे अगर एवरेज देखा जाए मार्केट में, तो 35,000 है एवरेज आपका फी। और यहाँ पे इसमें हम पूरा का पूरा सेलेनियम विथ जावा सारी चीजें लेके ये 25K में देते हैं। ओके, फिर आप चाहे एपीआई आ जाओ। एपीआई के रेयरेस्ट बैचेज होती है इंटायर पुणे में, अभी आप खोजोगे शायद ही मिले, तो हम यहाँ पे इसको 15K में देते हैं। और मोबाइल ऑटोमेशन 15K, मान के ये चलते हैं कि इसका प्री कंडीशन है कि आपको जावा एटलीस्ट आती है, ठीक है। इसके बाद ये आपका फ्री होता है, कोई भी कोर्स करोगे ये जरूर पढ़ाएंगे हम आपको, ओके। इसके बाद जे मीटर होता है, इसका है 10K हमारे एंड पे। अब अगर आप फीस जोड़ो पूरा, तो 30, 40, 65, टोटल हो गया 75। तो डिप्लोमा के लिए अगर आप अलग अलग ये सारे कोर्सेज करते हैं, तो आपको टोटल पे करना पड़ेगा 75K, जो कि मिनिमम प्राइस है कंपेयर टू मार्केट एक एक कोर्स का। और ये सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं 45K में यहाँ पे अभी ऑफर में। तो 45K में आपको ये सारे के सारे सॉफ्ट डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। अब यही सेम चीज़ मैनुअल हटा दो यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा जो फुल स्टैक है, वो सिंपल सा आपका 35 में ही आ जाएगा, पूरा का पूरा फुल स्टैक। अब इसमें देखो, क्योंकि अगर सिलेबस बड़ा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम जब ज़्यादा लगता है तभी फीस बढ़ती है, राइट। तो ये पूरा फुल स्टैक कवर करने में ऑलमोस्ट 5 मंथ लगते हैं। अब अगर कोई 2 मंथ पढ़ा के आपसे 25,000 ले ले, राइट, और 5 मंथ पढ़ के भी आप 35 से पे कर रहे हो, तो सोचो आखिर में कुछ तो बात होगी ना। तो क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो, पहले से कभी ट्रेनिंग कर चुके होगे, तो आपको आइडिया होगा कि क्या चीजें होती हैं कैसे मार्केट में। तो ये हमारा अभी का ऑफर प्राइस है इसका फुल स्टैक का, ठीक है। अब इसमें जैसे ये नहीं होता है कि 5 मंथ बाद ही आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने ऑटोमेशन कंप्लीट किया, एटलीस्ट यहाँ इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेजुअली आप धीरे धीरे सब चीजें पढ़ते जाओ, इंटरव्यू कंटिन्यू करो, कोर्स खत्म होते होते आपके पास जॉब होनी चाहिए। दैट्स आवर इंटेंशन, ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना हो? I just want to ask, मुझे manual भी करना है. I thought in full stack it will include. या तो आप ये करो ना डिप्लोमा, तो इस I'm a non-IT person, but I have experience of 2 years. I have done everything what you are telling me. ओके Project में ऐसे डाला है कि you are fully blank, but just ask him, ask her, and just complete your task like that. तो आप ये डिप्लोमा करो, इसके अंदर सारी चीजें हैं, मैनुअल भी इंक्लूडेड है, और फुल स्टैक का पूरा पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो कोई क्वेरी नहीं है, कुछ लग नहीं रहा कुछ छोटा है या फिर कुछ और चाहिए स्पेसिफिक आपको? नहीं, ओके। अब आते हैं बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स में हमने अपनी तरीके से, जैसे थी में सोचा कि कम से कम में लोगों का काम हो जाए, राइट। तो हमारे पास ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जैसे कंडीशनल बेस्ड, जैसे सिंपल सी बात है कि जो फी नहीं पे कर पाते हैं, राइट, उनके लिए और ज़्यादा डिस्काउंट होता है। और कभी कभी वो सिचुएशन में जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही वर्स्ट है, या फादर नहीं है जिसके, ना कोई अर्निंग नहीं है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम देते हैं। तो अगर आपके नॉन में कोई ऐसा हो बंदा जो लगता है कि वो कर सकता है, ट्रेनिंग वगैरह करके जॉब कर सकता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं कि वो कहीं से जाके ट्रेनिंग कर पाए, तो आप उसको यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम फ्री में भी ट्रेनिंग देंगे, नहीं तो मिनिमम फीस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे हमने फीस को कम करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया है, वैसे और भी फीचर्स आपको देते हैं।
तो जैसे आप एक चीज देख रहे होगे कि मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि अगर आप 2 घंटे बैठ के पढ़ते हो तो जरूरी नहीं है कि वो 2 घंटे में आपको जो चीजें यहाँ पढ़ाई गई वो याद ही रहे आपको। जब हो सकता है कि घर पे जाके कोडिंग करना स्टार्ट करो, फिर से स्टक हो जाओगे आप, राइट? या फिर आज टाइम नहीं मिला तो हो सकता है कल पढ़ना है तो पूरा ब्लैंक आउट हो जाओगे आप, नहीं समझ में आएगा कि क्या पढ़ा था। क्योंकि हम आईटी में काम कर रहे हैं, भूलना हमारी फितरत है, हर चीज हम लिख के काम करते हैं, राइट? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर एक क्लास को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और जैसे ही क्लास ओवर होती है आपको सेम टाइम पे आपको रिकॉर्डिंग्स भेज देता हूँ, जिससे कि आप घर पे बैठ के टाइम वेस्ट ना कर पाओ, पूरे टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। कहीं पे भी स्टक होते हो वीडियो वॉच करो और वापस कंटिन्यू करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? सेकंड, 100% प्रैक्टिकल। तो यहाँ होगा, मतलब फर्स्ट डे से आपको कोड लिखना स्टार्ट करना है, नो थियरेटिकल। तो जितना ज्यादा आप कोड लिखोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, उतना ज्यादा आपको चैलेंजेस आएंगे। जब चैलेंजेस आएंगे वही तो आपका लर्निंग होगा, राइट? मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, तो वही चीज है। तो यहाँ पे हर दिन मतलब कुछ भी थ्योरी नहीं होगी, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं करूँगा, वही चीज आपको करना है, फिर उसको एक्सटेंड करना है। फिर आपको डेली बेसिस पे होमवर्क्स मिलेंगे जो आपके घर पे भी जाके आपको वो प्रैक्टिस करना है। कि जैसे 5 प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पे करवाए, फिर 10 हमने असाइनमेंट्स में दिया, तो आपको जाके वो घर पे भी बनाना है। तो होगा क्या, क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे, कि जैसे मान लो कि आपने 2 आवर्स की क्लास यहाँ अटेंड किया, तो आपको 3 आवर्स कम से कम घर पे भी देना है असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया यही होता है कि एक तो आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास टाइम होना चाहिए पढ़ने के लिए। नहीं तो बहुत सारी सिचुएशंस में होता क्या है कि जब तक आप टाइम दोगे तब तक आपको समझ में आएगा, और जैसे टाइम देना बंद करोगे ना, फिर बैकलॉग इकट्ठा होता चला जाएगा। अब जब बैकलॉग इकट्ठा होगा तो फिर समझ में आना बंद हो जाएगा आगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वर्किंग के साथ, वर्किंग प्रोफेशनल। और 80% केसेस में मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब तक वो क्लास कहीं अटेंड नहीं करते हैं तब तक उनके पास टाइम ही टाइम होता है। अब जैसे क्लास स्टार्ट हो जाती है उसके 10-15 दिन बाद उनके पास ऑफिस में प्रेशर आ जाता है। ऑब्जर्व किया इसलिए बता रहा हूँ। अब वो चाहे वो झूठ बोलते हो जो भी कि नहीं सर ऑफिस का काम है जिसकी वजह से इस पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशंस होती है। तो ऐसी सिचुएशंस को फिर हमने हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, फीचर्स निकाला कि अनलिमिटेड लर्निंग। आपको क्या करना होगा कि आप मल्टीपल बैचेस लगा सकते हो। कि जैसे मान लो कि आपने एक बैच स्टार्ट किया, 1 महीने तक पढ़ा आपने अच्छे से, फिर टाइम के हिसाब से बैकलॉग्स बढ़ गए, अब आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आ रही, तो हम आपको बोलेंगे कि ये बैच छोड़ दो, अब जो रिसेंट बैच अब स्टार्ट हुई है वहां से कंटिन्यू करो, जहां से तुम्हारा छूटा हुआ है वो दूसरी बैच कंटिन्यू कर लो। तो वहां से कर लोगे तो तुम्हारा फिर से एक ट्रैक बन जाएगा। तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, राइट? तो एक बार अगर आपने एनरोलमेंट कर लिया, पे कर दिया फी, तो आपको 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आपके पास अनलिमिटेड लर्निंग के ऑप्शंस रहेंगे। अब जैसे इसको हमने क्यों रखा, मैंने ऑब्जर्व ये किया कि आपने ऑटोमेशन का कोर्स किया, सपोज कर आपको अच्छे से आ गया, अब आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, और कंपनी में गए वो फिर से आपको मैनुअल पकड़ा दिया। मतलब आपके ऑटोमेशन के बंदे थे, ऑटोमेशन में इंटरव्यू हुआ, लेकिन काम आपको फिर से क्या मिल गया, मैनुअल टेस्टिंग का। अब मना तो कर नहीं सकते ना तुरंत कंपनी में जाने के बाद। अब वो फिर से मैनुअल में काम करते करते 1 साल 6 महीने काम किया, ऑटोमेशन फिर भूल गए। अब आपको स्विच करना है तो फिर ऑटोमेशन लर्न करना पड़ेगा आपको, सिंपल ऑप्शन, राइट? तो आप फिर से हमारे पास आ सकते हो विद इन 2 ईयर, और फिर से कोई ना कोई बैच कंटिन्यू करके फिर से कोर्स को पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस एक प्रोजेक्ट पे तो हम खुद ऑटोमेशन यहाँ पे करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट हम इनकरेज करते हैं कि जो भी, जैसे आप मैनुअल टेस्टर हो, तो आप जिस प्रोजेक्ट पे कंपनी में मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो उसी को कंपनी में बैठ के ऑटोमेट भी करो, राइट?
तो इससे डुअल बेनिफिट होता है। एक तो आपने अपने टास्क को ऑटोमेट कर लोगे, आपको अपना प्रोजेक्ट पता है, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो रियल टाइम क्वेश्चंस होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में बताओ कौन सा चैलेंजेस फेस किया या इस सिनेरियो को ऑटोमेट कैसे किया। अगर आप क्लियर होगे तभी तो आंसर कर पाओगे, क्योंकि गूगल पे तो मिलेगा नहीं ना ये आंसर। तो हम इनकरेज करते हैं बंदों को कि टाइम निकालो 1-2 घंटे डेली ऑफिस में, मैनेज करो अपनी चीज़ों को और वहाँ पे भी ऑटोमेट करो। और वहाँ पे अगर आपने अपने प्रोजेक्ट की ऑटोमेशन खुद कर लिया तो आप खुद मैनेजर को प्रपोज कर सकते हो कि हमने पूरा प्रोजेक्ट ऑटोमेट कर दिया, डेमो दो और खुद से अपना कैरियर वहाँ बना सकते हैं। और 6 महीने जब रियल टाइम काम करना स्टार्ट करो फिर तो पूरा एक्सपीरियंस हो गया, फिर जाओ चेंज कर लो या वो खुद ही रिहायर कर लेंगे, रिटेन कर लिया करेंगे जब भी पेपर डालोगे, डिपेंडेंसी बन गई तो ये चीज़ है। अब उसके अलावा अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी चैलेंजेस आते हैं आपको, राइट, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमारी आपकी ऐसी ट्यूनिंग हो चुकी होगी कि आप मुझे फोन पे भी पूछोगे तो मैं आपको जो सोल्यूशन बताऊंगा आप तुरंत इंप्लीमेंट कर लोगे। तो हम आपको ऑफिस में भी अगर कहीं स्टक होते हो, एक कॉल करो, स्क्रीन शेयर करो, नहीं तो लैपटॉप लेके आ जाओ मेरे पास, ये पे वो प्रॉब्लम्स भी हम आपकी सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये रियल टाइम प्रोजेक्ट सपोर्ट फ्यूचर में भी आपको मिलता रहेगा। वैसे वो ऑप्शंस कम ही आते हैं क्योंकि इतना एक्सपर्ट हम बना के भेजते हैं यहाँ से कि वो सिचुएशन नहीं बनती, लेकिन 10 to 15% चांसेस में बन जाती है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, कभी कभी अपनी अपनी एप्लीकेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, राइट। नहीं किया है तो एक बार सोचना पड़ता है कि कैसे करें। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम आपको गाइड करते हैं। इम्पोर्टेंट है वो होता है ट्रेनिंग। जैसे आपको पता होगा कि इसी पुणे में बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड्स के स्कूल हैं। कुछ स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत महंगे हैं, कुछ स्कूल बहुत सस्ते हैं, राइट। अब महंगा सस्ता तो छोड़ो, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एडमिशन्स नहीं मिल सकते, जैसे आर्मी वगैरह के स्कूल्स कुछ हैं, केंद्रीय विद्यालय जैसा है, तो वहाँ पे आप चाह के भी एडमिशन नहीं ले सकते, हालांकि फीस भी बहुत कम है फिर भी। तो वो क्यों पॉपुलर है इतने? क्योंकि वो भी तो सीबीएसई का सिलेबस उनके पास है, सारे स्कूल्स में भी तो करिकुलम सिमिलर है। फिर क्यों? कुछ तो क्वालिटी है कि वहां से जो 12th के बच्चे होते हैं 10th के बोर्ड में एग्जाम में सब मोस्टली जो है टॉपर्स होते हैं। तो वहां पे ट्रेनिंग क्वालिटी जो होती है, पढ़ाने की क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तभी तो कुछ तो बेनिफिट होगा। तो ये चीज मैटर करता है। देखो, जैसे कंपनी मैटर नहीं करती आपकी ग्रोथ के लिए, मैनेजर मैटर करता है। आप गूगल में जॉब कर लो, अगर आपका मैनेजर अच्छा नहीं है ना, वहां पे भी लाइफ आपकी हेल हो जाएगी, सिंपल है। और छोटी सी भी कंपनी अगर आप ज्वाइन कर लो, अगर आपका मैनेजर कूल है, आप वहां पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो और बहुत सालों तक काम कर सकते हो, राइट। क्योंकि कंपनी में चाहिए क्या? पैसे और लर्निंग, प्रेशर नहीं चाहिए फालतू का। तो अगर दोनों चीजें आपको मिलती रहती है, लर्निंग हो रही है, अर्निंग हो रही है, तो आप पढ़े रहोगे कंपनी में, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए जैसे इसीलिए चूज करते हैं लोग कि मैनेजर चूज करो, कंपनी चूज नहीं करो, ठीक है। एक अच्छे मैनेजर के अंदर काम करोगे तो ज्यादा तेज से ग्रो करोगे। ओके, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेनर होता है कि अगर आपको यही सारी चीजें एक 4 या 5 years का ट्रेनर आपको पढ़ाए तो वो क्या नॉलेज दे सकता है, क्योंकि जितना उसको पता होगा वही आपको देगा, राइट। लेकिन अगर आपको 10, 15, 18 years का कोई ट्रेनर आपको पढ़ाता है तो तब आपको क्या मिलेगा? तो वो उसका एक्सपीरियंस मिलेगा कि उसने क्या क्या चीजें फेस की, क्या क्या चीजें हो सकती, पहले क्या थी, अब क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, वो विजिबिलिटी तब होगी उसको। तो आपको वो चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मिलना, राइट। पढ़ने को तो आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब ओपन करो, सारी चीजें हैं, क्या नहीं है वहां पे। आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, इवन हर चीज वहां पे है। पढ़ना चाहो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो हर चीज, अपने हिसाब से टाइम निकाल के, बहुत सारे चैनल में बता सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप स्टक हो गए तो हेल्प कौन करेगा? वहीं अटक के रह जाओगे, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। और वहां पे तो सिर्फ टूल चलाना सिखाया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट में कैसे काम करना है वो कौन बताएगा, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं सबको 15+ years का एक्सपीरियंस है, उससे कम हम ट्रेनर नहीं रखते, ठीक है। ट्रेनिंग 7th जो इसका फीचर है, 1-to-1 ट्रेनिंग। 1-to-1 ट्रेनिंग का मतलब ये होता है
कि हमारी बैच साइज बहुत छोटी होती है, क्योंकि अगर हमें क्वालिटी ट्रेनिंग आपको देना है तो अगर बैच बड़ी हो गई तो क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि भीड़ हो गई फिर तो इसलिए एक बैच में मैक्सिमम हमारे पास 5 to 7 बंदे होते हैं बस एक बैच में, और इसमें से 3 बंदे मतलब 5 to 7 नए होते हैं, 3 आपके पुराने आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो जगह दोगे ना, क्योंकि अगर आपने 2 साल का दिया है उनके लिए जगह ही नहीं दोगे, वो कभी भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते वॉटेवर, तो उनके लिए भी स्लॉट्स हमें खाली करके रखना पड़ता है। तो एक बैच ओवरऑल 10 बंदों का बनता है लगभग, ठीक है। तो इसलिए जितना कम लोग होंगे उतना 1 to 1 हम बैठ के काम कर सकते हैं साथ में, 1 to 1 अटेंशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है यहाँ पे अप्रोच। अब आप लोगों ने क्या किया, बी टेक बी, कौन सी ब्रांच? सिविल से क्या? सिविल से। आपने MCS कंप्यूटर साइंस, ओके। आपने नॉन IT, नो प्रॉब्लम, बट मास्टर सबकी हो रखी है, सब लोगों ने कॉलेज गए होंगे, मान लो चलो इनका एग्जांपल लेता हूँ, बी किया इन्होंने और सिविल इंजीनियरिंग, गुड। तो ये बिल्डिंग बिल्डिंग कैसे बनती है ये सब चीजें पता ही होगी आपको, नहीं पता? फिर ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा? है ना प्रॉब्लम? तो ये प्रॉब्लम कहाँ है, एजुकेशन सिस्टम में। उसमें ऐसा होता है कि हमारी स्ट्रेटजी गलत है। सेम जो बी टेक जो होता है ना, यही IIT वाले भी होते हैं, जो सिलेबस हमारा होता है वही सिलेबस उनका भी होता है। तो डिफरेंस कहाँ से आ जाता है कि वो फिर उनको लाखों का पैकेज, करोड़ों का पैकेज, हमें तो जॉब नहीं मिल रही, क्यों ऐसा होता है? एग्जैक्टली क्योंकि वहां पे क्या होता है, अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पे हम अपने कॉलेजेस में हम क्या करते थे, पास होने के लिए पढ़ते थे, और हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर भी बुक ला के लिखवा देते थे, नोट्स बना दिया, अब सबको पता है कि वो बोलेगा हम लिखेंगे, इससे अच्छा कि कोई लिख रहा होगा उसका हम फोटो स्टेट करा लेंगे और पढ़ लेंगे। क्यों जाए कॉलेज, अटेंड करें, सिंपल। IIT में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि एडमिशन होने के बाद आपको पहले बुक्स सिलेबस मिल जाएंगे, और बुक्स मिल जाती हैं, और उसके बाद 1-1.5 महीने तक कोई क्लासेस नहीं, वो आप पढ़ो सिर्फ, जैसे एक तरह से छुट्टी हो गया। उसके बाद आपको बुक दे दिया गया, सिलेबस दे दिया गया, और आपसे बोला जाएगा कि अब आपका सेशनल एग्जाम है, सेशनल टेस्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पास भी तो होना है, तो वो और सिलेबस जो होता है उनका पूरा का पूरा बुक में ही रहेगा। हमारे यहाँ जैसे वो फिक्स नहीं रहेगा कि यही आएगा थियरम समथिंग, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए उनको पूरा बुक प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर उनका टेस्ट होता है। अब वो सोचो, बुक पूरा पढ़ चुके थियरेटिकल कंसेप्ट, टेस्ट एग्जाम दे दिया, एग्जाम पास हो गए, अब उसके बाद प्रोफेसर आता है, फिर क्लास लेना स्टार्ट करता है। मतलब जो चीज तुम्हें पढ़ाना था प्रोफेसर को, वो तुम्हें पहले से पता है, फिर वो प्रोफेसर जो है वो क्लासेस तुम्हारी लेगा, तुम्हें पढ़ाएगा, अब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाएगा कि ये चीज कैसे काम किया। अब जैसे मैकेनिकल और इंजीनियर है, स्कूटर अपनी नहीं सही कर सकता कोई, क्योंकि छोटा सा इंजन है उसका, तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन होता है, राइट। लेकिन वहां पे जाके वो उसको बनवाया जाता है, उसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसको प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस उसके बताए जाते हैं, तो तब उसको जाके प्रैक्टिकली नॉलेज होता है। तो तरीका है सिंपल सा पढ़ने का या पढ़ाने का, और कुछ नहीं, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, नो थियरी। जैसे मैंने आपको बताया 100% प्रैक्टिकल मीन्स नो थियरी। तो हमारा अप्रोच यहाँ पे है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर आपको स्कूटी चलाना सीखना है, तो मैं 2 महीने आपको पूरा स्कूटी के बारे में बताऊं, उसके बाद लास्ट डे बोलो लो स्कूटी चलाओ, नहीं चला पाओगे, तो वही गलत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट डे स्कूटी लाएंगे, 250 पेज की बुक साइड में, सिर्फ आपको मैं काम की चीज मतलब डे बाई डे जो तुम्हें चाहिए वही हम बताना स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट डे हमने आपको बताया एक्सीलेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, बात खत्म, स्टार्ट कहाँ से। उसके बाद आपको मैंने हेलमेट पहना के
बैठाया स्कूटी पे, साथ में हम भी हेलमेट पहन के बैठ गए और स्कूटी को ऐसा सेट करेंगे कि वो 10 के ज्यादा स्पीड में जाएगी ही नहीं, तुम कितना भी एक्सीलेटर ले लो। फिर आपको बोला स्टार्ट करो, ग्राउंड में लेके गए और बोलूंगा आप 2 घंटे चलाते रहो ऐसे ही। अब फर्स्ट डे आपने 10 की स्पीड में 2 घंटे प्रैक्टिस की, सेकंड डे क्या करूंगा, स्पीड 20 कर लूंगा, सेम सिचुएशन। फिफ्थ डे तक 50 की स्पीड में आपसे 2 घंटे ऐसे मैंने प्रैक्टिस कराया, तो 5 दिन तक तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 6 डे उतर जाऊंगा, फिर 10 से स्टार्ट कराऊंगा लेकिन अकेले। फिर 5 दिन प्रैक्टिस कराया सेम फील्ड में, तो 10 दिन में बाबा अकेले चलाना सीख गए लेकिन खाली जगह पे। 11th डे फिर मैं सिचुएशन चेंज करूंगा, कैसी जगह ले चलूंगा जहाँ पे इक्का दुक्का ट्रैफिक हो कुछ, फिर वहां से 10 से 20 से ऐसे धीरे धीरे स्पीड कर करके प्रैक्टिस सिर्फ कराना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। तो 2 महीने बाद क्या होगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर, पढ़ने में सिर्फ अप्रोच है। तो इसलिए हमारा इसीलिए पूरा फोकस्ड क्या होता है, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली अगर बंदे ने कर लिया, वही कंपनी में चाहिए, वही इंटरव्यू में चाहिए, तो थियरी लर्न अपने आप हो जाती है बैकग्राउंड में। और ऑटोमेशन में पूरा का पूरा कोडिंग है, तो कोडिंग में थियरी नहीं होता, कोडिंग में कोडिंग है जो प्रैक्टिकली आपको लिखना ही है, तो लिख लिया वही आपका इंटरव्यू है। उसमें ऐसा नहीं है थियरेटिकल कंसेप्ट। अगर आपको पता है कि वेरिएबल क्या होता है, कि इंट a इज इक्वल टू 5, ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल में वैल्यू हमने स्टोर किया, तो वही तो थियरी हो गया, किसका काम किया है, प्रैक्टिकली आपने यूज किया। तो सिंपल लॉजिक। तो इसलिए पूरा का पूरा फोकस प्रैक्टिकल होगा। समझ में आया यहाँ तक, 9th। फिर डे बाय डे सेम डे जैसे आप कोई चीज पढ़ाते हैं हम लोग, तो साथ के साथ आपका इंटरव्यू प्रिपेयर कराएंगे। तो जैसे मान लो 2 टॉपिक आज हमने पढ़ा, तो इसमें बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें से पूछा जाएगा और कैसे आपको आप आंसर करना है। तो वो सारी चीजें भी आप नोट डाउन करते जाओगे साथ के साथ, तो जिससे बाद में हमें ऐसा ना हो कि इंटरव्यू अलग से प्रिपेयर करना पड़े, तो आपका साथ के साथ प्रिपरेशन चलती रहे। तो जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है तो आप बीच इन बिटवीन से ही इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आपका जैसे सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर इन बिटवीन भी आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हो जैसे हमें फील लगता है। अगर हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब आप ये चीजें कर सकते हो, तो आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में क्या करते हैं हम, जैसे आपको तो प्रिपेयर कराएंगे इंटरव्यू, रिज्यूमे में क्या लिखना चाहिए, कैसे रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, राइट, वो सारी चीजें। उसके बाद फिर हम आपको रेफर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओ तो उनको वो बताते हैं कि हमारे पास कंपनी कैंपस के लिए आती है, ऐसा कुछ नहीं होता किसी भी इंस्टीट्यूट में ना। और कोई इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता कहीं पे भी, क्योंकि आप खुद वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको खुद पता होगा कोई किसी को जॉब नहीं देता। जॉब आपको, इंटरव्यू तो आपको देना है, सिर्फ आपको असिस्ट क्या कर सकते, कॉल्स, बस इतना ही। तो अगर मैं आपको 20 इंटरव्यू कराऊं और आपका क्रैक ना हो, तो मतलब प्रॉब्लम है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमने 100% प्लेसमेंट दिया, नहीं हुआ। तो वही चीज है कि अगर हमने आपको इतना एक्सपर्ट बना दिया कि आप 2 ही 3 इंटरव्यू पे क्रैक कर लो, तो वो ज्यादा अच्छा है कि आपको 20 इंटरव्यू करवाएं, राइट। तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्वालिटी ट्रेनिंग पे होती है, कि आप इस तरीके से ट्रेंड हो जाओ कि सिर्फ हमारे कॉल्स की वेट मत करो, तुम्हारे पास भी कोई रेफरल मिला इंटरव्यू देके निकल लो। समझ गए, जो हमारे पास है वो तो है ही है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं का भी इंटरव्यू, मतलब मैं, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास जो कंपनी का ऑफर मिला, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, मान लो वहाँ पे 30,000 सैलरी मिल रही है, लेकिन आप जिस कंपनी में देना चाह रहे हो वहाँ पे आपको 50 मिल सकता है। तो आपके पास तो विंग्स है ना कम से कम, की नॉलेज है, तो आप 50 डिजर्व करते हो, राइट, कि नहीं कि मजबूरी में 25 करें। तो इसलिए अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, सिंपल है। और कोई किसी को जॉब देता नहीं, जॉब अपने दम पे लिया जाता है, अपने दम पे जो है वो आईटी में सरवाइव करना होता है, प्रमोशन से लेके ग्रोथ तक, क्या करते हो आप वहां पे, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हर जगह पे है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्किल्स होना चाहिए, और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहो। मैं क्यों करता हूँ ये सब चीजें ट्रेनिंग, इसमें मेरा बेनिफिट है। मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, पिछले 10-12 सालों से मुझे ऑफिस में कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती।
अब मेरे साथ के जितने भी बंदे थे भूल गए कोडिंग वोडिंग। अब जब 10 साल से कोई यूज नहीं करेगा तो उसको कुछ याद रहेगा नहीं। वो टेक्निकली एकदम कट चुके हैं बट उनको कंसेप्ट पता है। अब नीचे कहीं कोई स्टक हो गया कि नहीं ये चीज हम कैसे करें, तो कोई हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन मेरे केस में क्या होता है, मुझे कोई बता दे, मतलब मेरे टीम के नीचे जितने भी बंदे हैं मुझे कोई भी गोली नहीं देता, बेवकूफ नहीं बना सकता, एस्टिमेशन कोई गलत नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे कोई पता है कि मैंने यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, ये टाइम लग रहा है, तो मैं तो सीधे सीधे उसको पकड़ लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करो दिखाओ क्या प्रॉब्लम है, पूछा क्यों नहीं, मैं 5 मिनट में बता सकता हूँ। तो इसलिए जो मेरे टीम के नीचे है वो हाई परफॉर्मर्स है, क्योंकि वो टाइम पास नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पकड़ लूंगा कि किस चीज में कितना टाइम लगेगा, कितना कोड लिखने में कितना टाइम लगेगा, किस चीज को कैसे करना है। और जो मेरे इक्विवेलेंट है अदर वीपीस, नहीं आइडिया लगता उनको। तो ये मेरा बेनिफिट है, क्योंकि मुझे किसी भी लाइन किसी भी लैंग्वेज में बोलो तो मैं अभी कोड लिख के स्क्रैच से सारी चीजें दिखा सकता हूँ। इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है पूरा सिंटेक्स। तो इसका एडवांटेज मुझे मिलता है कि मैं टेक्निकली एकदम से टच में, और ये चाहिए ग्रो करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट जॉब सपोर्ट तो है ही है। तो जॉब सपोर्ट्स में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मोस्टली जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन ही आते हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारे पढ़ के निकले हुए हैं, अराउंड 5000 प्लस अब तक मैंने पढ़ा चुके, सब वर्किंग है। तो किसी भी कंपनी में किसी के पास भी कोई ओपनिंग्स होता है तो हमारे जॉब ग्रुप्स बने हुए हैं, वो खुद ही पोस्ट करते हैं, राइट। पोस्ट करते हैं, एक तो ये हुआ। दूसरा, कब उनका कॉल्स मेरे पास भी आता है कभी कभी, जैसे कि मान लो कि आप अच्छे से यहाँ पे सीख गए, फिर आप किसी कंपनी में गए जॉब करने के लिए, वहां पे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, राइट। तो टीम अगर एक्सपेंड करनी होगी तो आपका मैनेजर खुद बोलेगा ना कि अपना कोई फ्रेंड हो तो ले आओ, क्योंकि तुम अच्छे बंदे हो तो तुम वो चाहेंगे कि अपने जैसा कोई बंदा लेके आओ। अब आपको भी अगर कोई अच्छा बंदा चाहिए तो आपको कहाँ से मिलेगा, आप फिर मेरे पास आओगे कि सर इस एक्सपीरियंस लेवल के बंदा मुझे चाहिए, कोई हो तो सजेस्ट करो। तो मैं तुम्हें कोई बंदा ऐसे थोड़ी ना दे दूंगा, तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पे मुझे लगेगा जो सुटेबल है उसी को मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो इससे आपका भी बेनिफिट हो जाएगा, सामने वाले का भी बेनिफिट हो जाता है। तो ये चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली मेरे साइड से वर्क होती है, लेकिन मैं रेफर उसी को करूंगा जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस होता है। ये नहीं कि क्लास अटेंड नहीं किया, नॉलेज नहीं, और उठा के मैं बोलूंगा कि चलो जाओ रेफर कर दो, क्योंकि रेफर किया तो फिर फॉर्मेलिटी होगी, इंटरव्यूज नहीं होंगे, जॉब पक्का है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि मैं ऐसे रेफर नहीं करता, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, नाम हमें नहीं खराब करना, अपना ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है, राइट। तो ये सब चीजें भी बहुत चलती हैं। तो फ्यूचर में कभी भी, जैसे लगभग 300-400 कंपनियों का हमारा ग्रुप हो चुका है, इतने बंदे इतने डिफरेंट कंपनीज में हैं, घूम फिर के हमें क्या करना है, टीम में कंपनी तो बदलना है। इस कंपनी से 2 साल काम करो, फिर उसमें जाओ, उसमें से उसमें जाओ, ऐसे करके लाइफ निकल जाती है और आराम से। और तभी तुम ये सब चीजें कर सकते हो जब तुम्हें नॉलेज रहेगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। तो हम लोग के ग्रुप में ऐसे ही होता है, किसी को जॉब की टेंशन नहीं होती, फोकस रखो नॉलेज पे, कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ, बस। बाकी मैं हूँ, हमेशा चेंज कराता रहूंगा आपको जॉब, राइट। तो इसके लिए भी एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉलेज, और जिसपे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, क्लियर। तो ये सारे, इसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट्स हम देंगे वो भी आप कहीं पे भी वेरीफाई करा सकते हैं। तो जैसे जो सर्टिफिकेट हम यहाँ से आपका मिलता है, तो ये हमारी वेबसाइट है mindyourskills.com। तो जो भी सर्टिफिकेट आपका जनरेट होता है, तो यहाँ से कोई भी बंदा जाके सर्टिफिकेट नंबर डालेगा, वो व्यू वेरीफाई कर सकता है कि आपने हमारे पास से कोर्स किया है कि नहीं किया, और कौन सा कोर्स किया है। तो ये कहीं पे भी वेरीफाई किया जा सकता है। और आपको कभी भी कंपनी में, कभी कभी बहुत सारी कंपनीज में फीस भी रिम्बर्स करते हो। तो अगर आप लोग की कंपनी में ऐसा ऑप्शन है और उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो रिसीट चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, क्लियर। तो ये बताया मैंने आपको ओवरऑल सारी करिकुलम कैसे क्या होगा हमारे पास, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? क्योंकि आज आप लोग इस तरह इसीलिए हो कि पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि क्या करने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है, और भी इंस्टीट्यूट में जाओ,
जाओ वहां भी देखो क्या है कैसे है, कंपेयर करो, जहां अच्छा लगे सस्ता पड़े वहां से जाके करो। SQL का पूछना हाँ डीबी में आ गया ना, है। डेटाबेस में हम सिक्वल ही कवर करते हैं। और कोई क्वेरी? मैं कोशिश यही करता हूँ कि यहाँ से बंदा रजनीकांत बन के निकले, इसलिए सारी चीजें अकॉर्डिंगली बनाता हूँ। अब बाकी उसमें भी अगर कुछ छूटता है तो बताओ। तो आप ऑनलाइन जितने लोग हैं उनको कोई डाउट कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No. ओके ओके फाइन। तो अब अपने को समझना ये है कि थोड़ा सा अभी अपने पास 20 मिनट का टाइम है, तो प्रैक्टिकली देखो सेलेनियम होता कैसा है और कैसे हम इसमें इजिली काम करते हैं और कैसे चीजें रन होती हैं। तो इसका नेक्स्ट डेमो जब होगा कल, तो उसमें हम कल पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह कराएंगे, सबके सिस्टम पे सारा सेटअप कराएंगे। पहले अभी डेमो कंप्लीट होगा, फिर मुझे स्लॉट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको वीकेंड पे करना है, क्योंकि वीकेंड पे मैं अवेलेबल हूँ, वीकडेज पे मेरे पास एक ट्रेनर सीरीज है, वो एटोस में टेस्ट आर्किटेक्ट है, तो उसका ऑफिस सेकंड हाफ में होता है, मतलब शाम को 4 के बाद से स्टार्ट होता है, तो दिन में वो खाली रहता है वीकडेज में। तो वीकडेज में मैं भी रहता हूँ अवेलेबल, बट मेरा ऑफिस का भी काम होता है ना। तो और दूसरी चीज़, जैसे मेरा ऑफिस वैसे 2 बजे से स्टार्ट होता है, तो मैं फर्स्ट हाफ में अवेलेबल होता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि मुझे ऑफिस बीच बीच में जाना पड़ता है फ्रिक्वेंटली। कभी कभी ऐसा होगा 5 दिन के 5वें दिन जाना पड़ा। तो अगर मैं अब वो बैच लिया, तो प्रॉब्लम ये होगी कि फिर छुट्टियां इतनी होगी तो आप परेशान हो जाओगे ना। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए डेडिकेटेड लोग असाइन रहे जिससे प्रॉपर टाइम पे चीज़ें हो भी जाए, राइट। तो ऐसी चीज़ है। तो जिसको वीकडेज पे करना होगा, एक बार डेमो उनके साथ भी हम करवा देंगे, जिससे आपको आइडिया लगे कि ना जो पढ़ाने वाले हैं वो तो आपको समझ में आए, राइट। तो उनके साथ भी डेमो हो जाएगा। और नॉलेज वाइज ही से, क्योंकि जैसे मैंने बताया टेस्ट आर्किटेक्ट है, 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो नॉलेज में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके। तो अभी जैसे आजकल आप डेमो अटेंड करोगे, सारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, एक वीक का आपको मैं टास्क दे दूंगा, तब तक आप वो टास्क करते रहना, तब तक मुझे देखना होगा कि कैसे स्लॉट बनेगा, ठीक है, कि कैसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो एडजस्ट करके फिर बताऊंगा आपको कि कौन सा स्लॉट मिलेगा आपको वीकेंड का स्पेशली। और वीकडेज में भी वो 12 का बैच है आई थिंक, उससे पहले का मिल सकता है 10 से 12 वाला। तो ऐसा, बट जिसको जो जिसमें करना होगा उसके हिसाब से होगा। ओके। तो सिंपल सा अगर इसमें देखो, तो ये जो कोड है, सारी चीजें जैसे सेलेनियम और जावा का हम कोड लिखते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर आप इजिली देखो, तो ये एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ऐसे हमें इसमें काम करने के लिए जावा भी चाहिए होता है, मतलब वो एक्लिप्स में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें किस में लिखी है, जावा में। अब जावा में ये जो कुछ कोड है कुछ लिखे गए हैं, इनका कुछ मतलब होता है हर चीज़ का, और ये इजिली आप लिख सकते हो अगर मैं एक बार आपको समझा दूँ, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिकली चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ ये ए है, ये बी है, मानोगे है कि नहीं है? ये ए है, ये बी है, लेकिन ये ए ऐसा क्यों है, ए को ऐसा क्यों बनाया गया, या बी को ऐसा क्यों बनाया गया? कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया? नहीं आया ना? सोचो कितना पढ़ के निकल गए, सब चीजें हो गई, यूज हो रही, लेकिन कभी नहीं सोचा ये ए है तो क्यों है, ऐसा क्यों है, नहीं सोचा ना। सेम चीज। तो यही चीज होती है कि जब मैं पढ़ाता हूँ, तो स्टार्टिंग में, अब जैसे मैं फर्स्ट डे से आपको बताया कि हमारा अप्रोच थोड़ा सा ऐसा होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि 2-3 क्लासेस स्टार्टिंग के सिलेनियम की लेता हूँ, उसके बाद फिर 2-3 क्लासेस जावा की लेता हूँ, फिर दोनों को मिक्स करता हूँ,
और मिक्स करके फिर टेस्ट केसेस ऑटोमेट करता हूँ, क्योंकि हमारा गोल जो है यहाँ पे वो ये नहीं है कि हमें सेलेनियम सीखना है या हमें जावा सीखना है, राइट। हमारा गोल ये है कि एक प्रोजेक्ट का एंड टू एंड ऑटोमेशन करना है। जैसे कंपनी में क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की पूरी ऑटोमेशन करके हमें डिलीवर करना है, वो हमारा गोल होता है। वही गोल हमारा यहाँ पे होता है, राइट। तो अगर आपको सेलेनियम भी आ गया, जावा भी आ गया, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता चला कि किसी टेस्ट केस को हम ऑटोमेट कैसे करना चाहिए या कितने तरीके से करना चाहिए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस बेकार है, राइट। तो अगर आपने टेस्ट केस ऑटोमेट करना आ गया तो बैकग्राउंड में जो जावा सेलेनियम चाहिए वो अपने आप लर्न हो जाता है। तो इसलिए अब मैं फर्स्ट जैसे कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट में काम क्या होता है कि पहले वो पूरा जावा पढ़ाते हैं, जो कि सही भी है कि पहले जावा पढ़ाएंगे तभी जावा में कोड लिखोगे, तभी आप सेलेनियम कर सकते हो ना। लेकिन फिर मैंने वही बात हुई, स्कूटी चलाने वाली एग्जाम्पल दिया। मैं बोलता हूँ ना कुछ नहीं नॉलेज चाहिए आपको, मैं जब बोल रहा हूँ बस वैसे करो, एंड रिजल्ट पे आओ, राइट। तो यहाँ पे भी मैं वही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ कि जैसे अगर फर्स्ट डे आपसे कोड लिखवा रहा हूँ तो आपको मैं ये बोलूंगा कि ये ए है, तो ये ए है, इसके बारे में दिमाग आपको नहीं लगाने की क्यों है, राइट। कि अगर मैंने आपको बताया कि सपोज करो, जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, कि अगर आपको मैंने बताया कि अगर आपको क्रोम ब्राउजर लॉन्च करना है, सपोज करो, तो सिर्फ आपको अगर एक लाइन का कोड ऐसे लिख दो और इससे अगर आपका ब्राउजर ओपन हो रहा है तो बात खत्म, इसको याद कर लो। क्योंकि जितनी बार भी करना है, तो जैसे बच्चों को छोटे से ए लिखना, ए बनाने सिखाया जाता है ना, बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, तो वही काम हमारा होता है कि बार बार आपसे इतना बार ये कोड लिखवा देंगे कि ये सिंटैक्स ही याद हो जाएगा आपको। तो जैसे आपने वो पर्टिकुलर लाइन लिखी, चलो ब्राउजर लॉन्च हो गया, तब आपको याद हो गया कि ये लाइन जब भी ब्राउजर ओपन करना है, ये लाइन का कोड समथिंग। तो ऐसे ही इतने लाइन का कोड होता है स्पेशली। ऐसे यहाँ पे हमने 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखा है, बट खाली सिर्फ आपको 2 लाइन की जरूरत होती है, एक ये और एक ये लाइन, जिससे आपका ब्राउजर लॉन्च हो जाता है। अब ब्राउजर लॉन्च होने के बाद आपको एक यूआरएल चाहिए कि कौन से यूआरएल आपको ओपन करना है, कि फेसबुक ओपन करना है, कि गूगल ओपन करना है, वॉट, तो वो यूआरएल आपको डाल देना है। अब ये लोकल होस्ट 100 हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमारा लोकल प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम करते हैं, राइट। तो इसलिए हमने उसको ये यूआरएल दे रखा है। अब वो एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद फिर ये लाइन क्या कहता है कि ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम यूजर नेम, और उसमें जाके एडमिन टाइप करो। तो मतलब यूजर नेम का कोई फील्ड है जिसके अंदर जाके एडमिन टाइप करना है, फिर पासवर्ड का फील्ड है जिसमें जाके पासवर्ड टाइप करना है, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, फिर एक लिंक है न्यू लीड, उस पर क्लिक करना है, फिर वहां पे जाके लास्ट नेम कंपनी नेम डाल के सेव बटन पे क्लिक करना है। तो इतना कोड है, राइट। अब इसी कोड को अगर हमें रन करना हो तो राइट क्लिक, रन। तो ये क्रोम देखो लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था, अब फेल हो गया। अब इसी टाइप के चैलेंजेस आपको आते हैं, क्योंकि हमेशा सेलेनियम क्या होता है, अपग्रेड होता रहता है हर वर्जन। अब मान लो यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा, वीडियो अगर 1 साल पुरानी है तो पता लगा ऐसा इशू आ गया तो आप फिक्स नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस हमेशा आते हैं कि जो नए नए चैलेंजेस होते हैं जिनको हमें करना है। तो यहाँ पे है सेशन नॉट क्रिएटेड, could not start a new session, the version of Chrome driver only supports Chrome version 114। तो मतलब जो ड्राइवर हमने यहाँ पे यूज किया है वो सिर्फ क्रोम वर्जन 114 को सपोर्ट करता है, जबकि हमारा क्रोम वर्जन जो है यहाँ पे अगर हम चेक करें अबाउट गूगल क्रोम, तो ये 116 हो चुका है। तो कंपेटिबिलिटी इशू है। तो ऐसे सिचुएशंस में फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें जाके लेटेस्ट ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जैसे selenium.dev,
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे, तो अगर आपको जैसे जावा में काम करना है तो यहाँ से इसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐसे रूबी में काम करना है, सी शार्प, पाइथन, जावा से, क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, राइट। तो जिस लैंग्वेज में आपको काम करना है वहाँ से उसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है। ऐसे ही फिर एक स्टैंड अलोन जार भी होता है इसके अंदर, कि मल्टीपल लाइब्रेरीज डाउनलोड करने से अच्छा कि सिर्फ एक ही डाउनलोड कर लो, वो सब काम करता है। फिर यहाँ पे अब आ जाओ, नीचे ऑप्शंस दे रखा है देखो ब्राउजर्स का। तो ये सेलेनियम जो है इतने सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है, तो इनमें से किसी भी ब्राउजर पे आप काम कर सकते हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे सफारी, क्रोम, ओपेरा, सब सारी चीज़ें। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, मल्टीपल ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ फीचर्स है इसके अंदर। अब सपोज करो कि आपको क्रोम पे काम करना है, तो यहाँ से क्रोम के डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, और यहाँ पे इसने ऑप्शंस दे रखे हैं कि जैसे अगर आपको ओल्डर रिलीज कोई किसी डिफरेंट वर्जन्स पे काम करना है, तो इस पे आप क्लिक करो, तो यहाँ से सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स देखो यहाँ पे दे रखे हैं कि क्रोम ड्राइवर 114 जो डाउनलोड मैंने किया था पहले, 114, 113, ऐसे प्रीवियस ड्राइवर्स यहाँ पे हैं। तो ऐसे आपको लेटेस्ट ड्राइवर लेना पड़ेगा। तो लेटेस्ट ड्राइवर के लिए क्या करो, इफ़ यू आर यूजिंग क्रोम वर्जन 115 और न्यूअर, प्लीज कंसल्ट द क्रोम फॉर टेस्टिंग अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड। दिस पेज विल प्रोवाइड convenient JSON endpoint for specific Chrome driver version to download, right? तो फिर आपको क्या करना है, इस पे जाना है और यहाँ पे 116 हमारा वर्जन है, राइट। हमें चाहिए स्टेबल, तो इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे अलग अलग देखो एंड पॉइंट URLs दे रखे हैं इसने डाउनलोड करने के लिए। तो हमें क्रोम ड्राइवर क्या चाहिए, 664 बिट, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये URL कॉपी करो और यहाँ से पेस्ट कर दो। पेस्ट किया तो ये डाउनलोड हो गया होगा, ये यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया। ओपन करो और इसको यहाँ से जाके अनजिप कर लो, एक्सट्रैक्ट हियर। यहाँ पे क्रोम ड्राइवर EXE मिल गई, इसको यहाँ से कर लो कट, और कोड में जाके देखो कि कहाँ से आ रहा है, सेलेनियम सॉफ्टवेयर फोल्डर से, तो वहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर दो। सी ड्राइव सेलेनियम सॉफ्टवेयर, तो इसको पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं और फिर यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। अब सिंपली इसको रन करके देखते हैं। अब देखो ब्राउजर ओपन हो गया, चल रहा है। अब वो URL डालने की कोशिश कर रहा है, ये URL डाला, देखो एडमिन एडमिन टाइप कर दिया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब ये एप्लीकेशन एरर थ्रो कर रहा था, तो इसको भी फिक्स करते हैं। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है, तो इसके लिए पहले सर्वर स्टार्ट करना होता है। सर्वर स्टार्ट हो गया, वापस ये कोड रन करो।
कैसे क्रोम ओपन हो? अभी एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश कर रहा है। सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एनीवे, तो हम यहाँ पे यूआरएल चेंज करके दूसरा कोड बना देते हैं। तो लेट्स से फेसबुक हमारा HTTPS होता है, उसका ये होगा आई थिंक email @gmail.com, ये होगा आई थिंक लॉगिन। बाकी ये कोड कर देता हूँ मैं कमेंट। रन कर। अब ये जो चेंजेस मैंने किया, अब इजीली मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ये देखो फेसबुक ओपन किया, एडमिन @ डाला, लॉगिन पे क्लिक कर दिया। चूंकि क्रेडेंशियल ही गलत है तो इसी पेज पे आके अब जनरली ये चीज हमने लिखा कैसे, अब ये समझो। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इतने लाइन का कोड हमारा फिक्स हो गया कि भाई ब्राउजर लॉन्च करने का है, बोल जाओ। अब उसके बाद ब्राउजर लॉन्च करने के बाद हमें कौन से कंट्रोल में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका कोड लिखना होता है। तो जनरली यहाँ पे हम कोड ऐसे लिखते हैं, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। जो ड्राइवर है उसको बोल लेंगे कि एलिमेंट फाइंड करो। अब एलिमेंट फाइंड करने का मतलब ये हो गया कि ये जो पेज है, इस पेज, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज। और इस पेज पे जितने भी चीजें हैं, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स, ये पासवर्ड, ये बटन, ये लिंक, ये चीजें, ये टेक्स्ट, ये लेबल, इमेज, ये हर एक चीज क्या है, एलिमेंट्स है इसके लिए। इनको हम क्या बोलते हैं, वेब एलिमेंट, या नॉर्मल लैंग्वेज में एलिमेंट्स है ये वेब पेज के। तो इसीलिए हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, फाइंड एलिमेंट्स। तो मतलब कि इस पेज पे कहाँ पे क्या एक्शन करना है, तो पहले उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करोगे तभी तो उस पे एक्शन करोगे। तो इसलिए ये मेथड क्या करता है, एलिमेंट को फाइंड करता है। किसके बिहाफ पे कैसे फाइंड करेगा, तो हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ नेम या आईडी होता है, राइट, वो हमें पास करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे अगर इसको हम व्यू करें, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, तो इसका सोर्स कोड दिखने लगेगा हमें। तो इस सोर्स कोड को मैं इस फॉर्मेट में कर लेता हूँ, ऐसे बॉटम में, और यहाँ पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट। तो जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया तो देखो नीचे आ रहा है, लिखा हुआ ना, नेम क्या है, ईमेल, आईडी क्या है, ईमेल। अब हमें पता चल गया यहाँ से नेम ईमेल है इसका। तो यहाँ से हमने ईमेल कॉपी किया और यहाँ पे बोला कि नेम वहाँ पे दे रखा है। तो मैं बोलूंगा कि फाइंड करना है नेम को, एलिमेंट को, कैसे, बाई डॉट, अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा देखो, नेम। तो बाई डॉट नेम के थ्रू हमें फाइंड करना है, जिसका नेम ये है, ईमेल। इसका नेम ईमेल है, उसको फाइंड करो। अब ये क्या करेगा, कोड यहाँ तक उसको फाइंड कर लेगा। फाइंड करने के बाद उसमें क्या करना है, डेटा टाइप करना है कुछ। तो क्या टाइप करना है, तो उसके लिए टाइप करने के लिए मेथड क्या होता है, सेंड कीज। अब क्या टाइप कराना है, जैसे मान लो कि एडमिन वॉट एवर, जो भी आपका मेल आईडी या मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे दे दो, वो अपने आप टाइप कर लेगा। तो ये कोड ऐसे इसीलिए लिखा गया, राइट। अब जितने भी टेक्स्ट बॉक्स फीचर में मिलेंगे सब में यही ऑपरेशन। अब सिमिलरली पासवर्ड के लिए भी हमें करना है, तो पासवर्ड टाइप करना है, तो उसके लिए भी कोड सिमिलर होगा, राइट। यही यही सेम कोड यूज होगा, सिर्फ उसके अंदर चेंज क्या हो जाएगा, उसका नेम, कि एलिमेंट का नेम, अब कौन से एलिमेंट को फाइंड करना है और उसके अंदर क्या टाइप करना है, पासवर्ड बॉक्स में। तो सेम वे अगर आप जाके यहाँ पे देखो, पासवर्ड बॉक्स को इंस्पेक्ट करो, तो इसका सोर्स कोड है, इसमें नेम क्या दे रखा है, पास। तो इसीलिए हमने वहां पे क्या लिख दिया कि नेम जो है पास, उसको आइडेंटिफाई करो और उसमें जाके टाइप कर दो एडमिन। फिर सिमिलरली लॉगिन बटन था, इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, तो नेम क्या दे रखा है, लॉगिन। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, नेम लॉगिन आइडेंटिफाई करो। अब चूंकि उसमें टाइप तो करना नहीं है, क्लिक करना होता है, तो इसलिए क्लिक कर दो। ऐसे सिंपल सा 10-12 कंट्रोल हमारे पास होते हैं।
अगर हमें आइडेंटिफाई करना प्रॉपर आ गया तो एक्शंस या तो हम टाइप करेंगे या क्लिक करेंगे, दो ही एक्शंस होती हैं। उस एलिमेंट पे करते चले जाओ, आपका पूरा स्क्रिप्ट बनता चला जाए। बहुत आसान है सीख। आपको ये नहीं सिर्फ फोकस करना कि ये सब क्यों है, ऐसा हो रहा है, सिर्फ कंसेप्ट वाइज जाओ। तो कंसेप्ट वाइज जाओगे, ये चीजें आप अपने आप कोड लिखना स्टार्ट कर दोगे। बिना नोइंग, मतलब विदाउट नोइंग जावा आप सब चीजें कर लोगे। और जब आपको जावा पढ़ लोगे तब आपको ये भी समझ में आएगा कि ये सिंटेक्स ऐसा क्यों लिखा जाता है, तब वो भी समझ में आ जाएगा हमें। क्लियर? तो इसलिए हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग, डिफरेंट तरीके से। ओके, तो कल मिलते हैं। तो कल सारा चीजें यही सेटअप करवा के ये कोड आपसे इतना लिखवाएंगे। ठीक है, लिख के देखो कितना मजा आता है, कितना आसान है। स्पेशली कि बिना जावा जाने भी हम ऑटोमेशन करेंगे, वो अलग ही लेवल का मजा आएगा फिर। ठीक है, और जावा भी ऐसे मजाक मजाक में आप सीख लोगे कि कब आपको जावा आगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कुछ लोग का परसेप्शन ऐसे माइंडसेट है कि जावा बहुत मुश्किल है, मत सीखो, नहीं आएगा। मैं कहता हूँ देखो, कोई इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बात ये है कोई सिखाता तुमको कैसे है, वो इम्पोर्टेंट है। राइट? तो कब सीख जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि जावा सीख गए तो। राइट? तो वो खैर है। तो हमारा टाइम हो गया अगले बैच का अब। तो आज की सेवा हम समाप्त करते हैं। तो जिसको कोई क्वेरी होगा कभी भी कॉल करो, पूछ सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो आपका यहाँ पे